A very pleasant good morning, dear students. My name is Anil and I am your English mentor. And today I'm going to take your part number 2, error detection based on model verbs. In this particular session, I'm just going to take 15 common errors based on model verbs. Each sentence has an error. You'll have to find out an error based on model verb. I will give you 10 seconds to find out the error given in that particular question. And at the same time, after completion of this particular worksheet, you'll have to tell me how many marks did you score in this particular worksheet. So now let us start this particular session without any further delay. Be attentive. Sentence number 1. Walk slowly, lest you will fall. Now I will play the timer and each sentence has 10 seconds to find out the correct answer. Time is over. Now my dear student, please have a look of this. Whenever you connect two clauses with lest, देखो जब lest के साथ आप दो clauses को connect करते हो, lest आपका एक conjunction है, जब lest के साथ आप two clauses को connect करते हैं, always keep this thing in your mind that lest हमेशा अपने साथ should लेकर चलता है, ना कि will. और lest का जो meaning होता है इसका meaning कहीं ऐसा ना हो. तो इस सेंटेंस का मीनिंग हुआ वॉक स्लोली लेस्ट यू शुड फॉल, मतलब थोड़ा धीरे चलो कहीं ऐसा ना हो कि तुम गिर जाओ. सो लेस्ट अपने साथ शुड लेकर चलता है ना कि विल. सो इंस्टेड ऑफ राइटिंग विल वी हैव टू राइट शुड. यहाँ पे शुड आना चाहिए आपका. नाउ लेट्स मूव ऑन विद सेंटेंस नंबर 2. अ स्पोर्ट्समैन शैल कीप हिमसेल्फ फिट. लेट मी प्ले द टाइमर. Your time starts now. Okay, now please have a look. So my dear student, shall expresses a formal suggestion. देखो shall क्या करता है? Shall आपका एक formal suggestion जब आप देते हो तो shall से दे सकते हैं. Formal suggestion जब आप देते हो तो वहां पर आपको shall use कर सकते हैं. But when you talk about strong obligation, जब आप strong obligation की बात करते हैं तो वहां पर shall नहीं बल्कि आपको क्या यूज करना होता है? वहां पर आपको must यूज करना होता है. बिकॉज अगर मैं बात करूं एक स्पोर्ट्समैन के लिए अपनी हेल्थ को रखना उसके लिए स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन है. सो इंस्टेड ऑफ राइटिंग शेल वी शुड राइट मस्ट ओवर हियर. हमें यहाँ पे मस्ट यूज करना चाहिए बिकॉज इट शोज स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन फॉर अ स्पोर्ट्समैन. एक स्पोर्ट्समैन के लिए एक स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन दिखाता है. सो देयरफॉर द करेक्ट आंसर इज मस्ट. नाउ सेंटेंस नंबर 3. My friend was used to abuse others in his childhood. Your time starts now. Now, my dear students, have a look. Used to. देखिए, when you talk about past repeated action, जब आप past repeated action की बात करते हैं तो वहां पर हम used to के बाद V1 यूज करते हैं जब आप past repeated action की बात करते हैं. लेकिन जब आप एडिक्शन की बात करते हैं, एडिक्शन का मतलब होता है जब आप किसी लत की बात करते हैं, जब किसी चीज की लत होती है तो वहां पे स्ट्रक्चर फॉलो करना पड़ता है. बी यूज टू और उसके बाद हमें V1 प्लस ING जो कि नाउन की तरह काम कर रहा है. इट मींस हमें जीरन यूज करना होता है. नाउ इफ यू लुक एट दिस पर्टिकुलर सेंटेंस, माय फ्रेंड वाज यूज्ड टू अब्यूज लिखा हुआ है जो कि इनकरेक्ट हो गया क्योंकि अब्यूज करने की उसको लत थी. तो देयरफॉर यहां पर आपका अब्यूजिंग आना चाहिए बिकॉज यू आर टॉकिंग अबाउट एन एडिक्शन. तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? माय फ्रेंड वाज यूज्ड टू अब्यूजिंग अदर्स इन हिज चाइल्डहुड इज द करेक्ट आंसर. नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट स्लाइड. अब सेंटेंस नंबर 4 को देखते हैं. He need not to attend the meeting today.
Your time starts now. Time is over. Now please have a look. So my dear student, when we use need as a model verb, देखो जब आप need को as a model verb use करते हैं तो ये दो ही तरह के sentences में use होता है. एक तो आपका sentence negative होना चाहिए और दूसरा आपका sentence interrogative होना चाहिए. So we use in two type of sentences only, negative और interrogative. Number two, when we use need as a model verb, जब need को हम as a model verb use करते हैं, so it never takes to with it. तो वो अपने साथ to लेकर कभी भी नहीं आता है. He need not to attend नहीं आएगा, यहाँ पे to हट जाएगा because we are using need as a model verb. Therefore यहाँ पर सिर्फ आएगा he need not attend the meeting. तो यहाँ से हम to को क्या कर देंगे, remove कर देंगे because when we use need as a model verb, that time it does not take to with it. वो अपने साथ to लेकर नहीं आता है. So this is sentence number 4. Now let's move on. Sentence number 5. She dares not face an interview. Let me play the timer. Your time starts now. Now again, please have a look. So when we use dare as a model verb, देखो need की तरह dare का भी rule same ही होता है. When we use dare as a model verb, so it is also used in two type of sentences. One, it should be negative. आपका सेंटेंस नेगेटिव होना चाहिए. सेकंड, आपका सेंटेंस क्या होना चाहिए, इंटेरोगेटिव होना चाहिए. एंड वन मोर थिंग, व्हेन वी यूज नीड और डेयर एज ए मॉडल वर्ब, तो वो अपने साथ एस या ईएस भी नहीं लेकर आता है, क्योंकि एस या ईएस आप मेन वर्ब के साथ लगाते हैं, ना कि मॉडल वर्ब के साथ. सो देयरफॉर अगर आप सेंटेंस को ध्यान से देखें, शी डेयर्स नॉट, तो यहाँ पे डेयर हमने एज ए मॉडल वर्ब यूज किया है. सो देयरफॉर द करेक्ट आंसर इज शी डेयर नॉट. डेयर्स नहीं आएगा बल्कि डेयर आएगा, क्योंकि हमने डेयर को एज अ मॉडल वर्ब यूज किया, और मॉडल वर्ब अपने साथ एस या ईएस लेकर नहीं आता है. राइट? सो दिस इज सेंटेंस नंबर 5. नाउ लेट्स मूव ऑन. सेंटेंस नंबर 6. Ram used to going for a morning walk but no longer now. Your time starts now. Time is over. Now dear student, when we talk about past repeated action, देखो जब आप past repeated action की बात करते हैं तो वहां पर आप क्या यूज करते हैं, वहां पर आप used to के बाद V1 यूज कर लेते हैं. राम क्या करता था, राम मॉर्निंग वॉक पे जाता था लेकिन अब नहीं जाता है. तो यहाँ पे देखो used to के बाद आपने to लगा दिया, और इसके बाद आप फिर क्या लगाएंगे, फिर आपको सिर्फ V1 लगाना होगा, because you are talking about past repeated action. So therefore the correct answer is Ram used to go for a morning walk but no longer now. This is sentence number 6. Now let's move on. Next slide. Sentence number 7. You had better to change your ways. Had better का मतलब होता है तुम्हारी भलाई इसी में है, तुम्हारे लिए अच्छा यही होगा, तुम्हारी मतलब तुम्हारी अच्छाई इसी में है, तुम्हारे लिए बेहतर यही होगा. जब इस तरह के एक्सप्रेशन आप देते हैं तो वहां पर हम हैड बेटर यूज करते हैं. एंड व्हेन वी टॉक अबाउट लाइक इट्स अ वे ऑफ सेइंग सजेशन बट थ्रेटन, मतलब ये सजेशन तो होता है, ये वार्न करने का तरीका होता है. जब आप किसी को थ्रेटन करते हो वहां पर हम हैड बेटर यूज कर लेते हैं. राइट? सो नाउ योर टाइम स्टार्ट्स. Time is over. Now dear student, when we talk about had better का मतलब होता है तुम्हारी भलाई इसी में है, तुम्हारे लिए अच्छा यही होगा, जब सामने वाले को आप थ्रेटन करते हो. But one thing you should keep in your mind whenever we use had better is never followed with to. यानी had better कभी भी अपने साथ to लेकर नहीं आता है. So therefore यहाँ पर हमें to को रिमूव करना होगा. The correct answer is सिर्फ सीधा आ जाएगा you had better change your ways is the correct answer, because had better अपने साथ to लेकर नहीं आता है. So this is sentence number 7. Now sentence number 8.
they have to postpone the meeting due to heavy rain yesterday. Your time starts now. Time is over. Now have a look of this example. So my dear student, when we talk about past compulsion, जब आप past compulsion की बात करते हैं तो वहां पर instead of writing have to, वहां पे हमें यूज करना पड़ेगा had to. वहां पे हम क्या यूज करेंगे? had to यूज करेंगे. At the same time, if you look at this particular sentence carefully, we are using an adverb of past. यहाँ पे हमने जो adverb यूज किया वो भी past की यूज की है, तो sentence आपका past का है. So therefore we have to use they had to postpone their meeting due to heavy rain. Because when we talk about past compulsion, तो वहां पर हमें had to use करना होता है, ना कि have to. Now let's move on to our next example, sentence number 9. Mind your language, otherwise you should be punished. Right. Mind your language, otherwise you should be punished. Now, my dear student, if you just look at this particular sentence, first, let me play the timer. Time is over. See, mind your language, मतलब अपनी लैंग्वेज को ध्यान में रखो. अदरवाइज देखो, अगर आप इसको अदरवाइज को फॉलो करते हैं तो अदरवाइज क्या करेगा? अदरवाइज के केस में आपको क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे यू शैल बी पनिश्ड, यू शैल बी पनिश्ड इज द करेक्ट आंसर. शैल आप यूज कर सकते हैं, क्योंकि जब आप क्या करते हैं, जब आप अपनी स्टेटमेंट को स्ट्रॉन्ग बोलते हैं, जब अपनी स्टेटमेंट को स्ट्रॉन्ग बोलते हैं, जिनके साथ आप विल यूज करते हैं उनके साथ शैल, और जिनके साथ शैल यूज करते हैं उनके साथ हम विल यूज कर लेते हैं. माइंड योर लैंग्वेज मतलब अपनी लैंग्वेज को क्या करो, काबू में रखो, वरना क्या होगा, तुम्हें पनिश किया जाएगा. तो यू शैल बी पनिश्ड. एक तो तरीका ये है इस सेंटेंस को करेक्ट करने का, यानी आप शैल यूज कर सकते हैं यहाँ पे. नंबर 2, अगर मैं बात करता हूं, अगर मैं इस कंजक्शन को यहाँ पर लेस्ट कर दूं तो फिर क्या है, फिर आपका शुड आना चाहिए, बिकॉज लेस्ट अपने साथ शुड लेकर चलता है. तो इस सेंटेंस को हम ऐसे भी करेक्ट कर सकते हैं, माइंड योर लैंग्वेज, अदरवाइज की जगह हम लेस्ट यूज कर लेंगे, माइंड योर लैंग्वेज लेस्ट यू शुड बी पनिश्ड. मतलब माइंड योर लैंग्वेज, अपनी लैंग्वेज को ध्यान में रखो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हें पनिश किया जाए. लेस्ट यू शुड बी पनिश्ड. अगर आप अदरवाइज को फॉलो करते हैं तो शैल बी पनिश्ड है, और लेस्ट को मान के चलते हैं तो यू शुड बी पनिश्ड इज द करेक्ट आंसर. दिस इज सेंटेंस नंबर 9. Now let's move on to sentence number 10. ध्यान से देखेंगे. Candidates shall not carry any electronic gadgets to the examination hall. Let me play the timer. Your time starts now. See, my dear student, if you look at this particular sentence, see, candidate shall not. देखो, जब आप बात करते हैं, हम एक फॉर्मल क्या है, ये तो एक फॉर्मल इंस्ट्रक्शन होगी, फॉर्मल सजेशन हो गया. जब आप सामने वाले को जब फॉर्मल क्या करते हो, इंस्ट्रक्शन देते हो या नोटिफिकेशन देते हो, तो वहां पर क्या होता है, या इंस्ट्रक्शन देते हो, तो वहां पर हम इंस्टेड ऑफ राइटिंग हम क्या यूज करते हैं, शैल की जगह हम शुड यूज करते हैं. तो या तो हम यहाँ पे शुड यूज कर सकते हैं. देखो, कैंडिडेट शुड नॉट कैरी एनी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, लेकिन यहाँ पे शुड भी अगर मैं बात करता हूँ, शुड करेक्ट है, चलो ठीक है. लेकिन जब मान लो अगर आप किसी फॉर्म को अगर आपने फिल किया हुआ है या कोई एडमिट कार्ड के ऊपर स्पेशली मेंशन किया होता है और वहां पर शुड नहीं बल्कि मस्ट के साथ बोला होता है, रीजन वाई, क्योंकि वहां पर आपके लिए स्ट्रॉन्ग कंपल्शन होता है. जब स्ट्रॉन्ग कंपल्शन होता है तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग शुड वहां पर हमें मस्ट यूज करना चाहिए. तो शुड भी करेक्ट माना जा सकता है, लेकिन आई वुड गो फॉर मस्ट. कैंडिडेट मस्ट नॉट कैरी एनी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, क्योंकि मस्ट जो है वो आपका स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन की बताता है कि कैंडिडेट्स को किसी भी तरह का कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स नहीं लेकर जाना है. तो मस्ट क्या करेगा, मस्ट आपका स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन बताएगा, तो मस्ट नॉट इज द करेक्ट आंसर. लेकिन अगर आपने शुड नॉट भी किया वो भी करेक्ट माना जा सकता है, राइट. नाउ सेंटेंस नंबर 11. Sentence number 11. They used to living in my locality, but no longer now. Your time starts now.
Now have a look of this example. Sentence number 11. They used to living in my locality but no longer now. यानी वो हमारी locality में रहते थे लेकिन अभी नहीं. So my dear student, देखो मैंने अभी आपको बताया था used to एक model verb है. जब आप past repeated action की बात करते हो, past repeated action की बात करेंगे तो वहां पर हम क्या यूज करते हैं? used to. और उसके बाद हम V1 यूज करते हैं, ना कि V1 प्लस ing. बी यूज टू के केस में हम V1 प्लस ing यूज करते हैं जब आप एडिक्शन की बात करते हैं, लेकिन जब आप पास्ट रिपीटेड एक्शन की बात करते हैं तो वहां पर सिर्फ हम V1 यूज करते हैं. सो इंस्टेड ऑफ राइटिंग यूज टू लिविंग, यहाँ पर हमें सिर्फ लिव यूज करना पड़ेगा. तो क्या करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? दे यूज टू लिव इन माई लोकेलिटी बट नो लॉन्गर नाउ इज द करेक्ट आंसर. नाउ सेंटेंस नंबर 12. नीड्स शी सबमिट हर असाइनमेंट ऑन मंडे. The time starts now. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Time is over. Now, if you look at this sentence, sentence number 12, a part has an error. पहला part में ही error है. कैसे? As I told you earlier, जब आप need को as a model verb use करते हैं तो ये दो ही तरीके से use होता है. कैसे? या तो ये होगा आपका नेगेटिव सेंटेंस के अंदर, या ये होगा इंटरोगेटिव सेंटेंस के अंदर. तो यहाँ पर नीड हम एज ए मॉडल वर्ब यूज करें तभी तो हम नीड के साथ सेंटेंस स्टार्ट कर रहे हैं. मतलब नीड यहाँ पर एज ए मॉडल वर्ब यूज किया है, और जब हम नीड को हम एज ए मॉडल वर्ब यूज करते हैं तो अपने साथ एस नहीं लेता, तो वो नीड ही आएगा सिर्फ. तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? नीड शी सबमिट हर असाइनमेंट ऑन मंडे. क्या उसको अपने असाइनमेंट मंडे को सबमिट करने की जरूरत है? सो इन दिस पर्टिकुलर सेंटेंस वी आर यूजिंग नीड एज ए मॉडल वर्ब, सो देयरफॉर वी हैव टू यूज नीड इंस्टेड ऑफ राइटिंग नीड्स. तो नीड्स की जगह में नीड का ही यूज करना पड़ेगा. राइट. नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट स्लाइड. सेंटेंस नंबर 13. देखते हैं ध्यान से. राम हैड नॉट बेटर वेस्ट हिज मनी. Ram had not better waste his money. Let me play the timer. Time is over. Now look at this example. My dear student, had better. देखो had better क्या होता है? जब आप पॉजिटिव सेंटेंस बोलते हैं तो had better उसके बाद आप सीधा V1 यूज करते हैं, जिसका मतलब होता है कहीं ऐसा ना हो, तुम्हारे लिए बेहतर यही होगा, तुम्हारी भलाई इसी में है. राइट. हैड बेटर के केस में जब आप थ्रेटन करते हो किसी के लिए, तुम्हारी भलाई इसी में है, तुम्हारे लिए बेहतर यही होगा, तुम्हारे लिए अच्छा यही होगा, तब हम यूज कर लेते हैं. लेकिन अब हैड बेटर में भी आपको नेगेटिव सेंटेंस दे दिया कि राम की भलाई इसी में, को पैसा वेस्ट ना करे. सो माय डियर स्टूडेंट, जनरली क्या होता है जब आप हैड बेटर यूज करते हैं तो उसके बाद नॉट लगाया जाता है. हैड बेटर के बाद नॉट लगाएंगे आप. बट इफ यू लुक एट दिस एग्जांपल, राम हैड नॉट बेटर, यहाँ पे तो हैड के बाद नॉट लगाया है जो कि इनकरेक्ट है, बल्कि नॉट किसके बाद आना चाहिए था? बेटर के बाद नॉट आना चाहिए था. द करेक्ट आंसर इज राम हैड बेटर नॉट होना था, ना कि राम हैड नॉट बेटर, बिकॉज वी यूज नॉट आफ्टर हैड बेटर. हैड बेटर के बाद हम नॉट यूज करते हैं. राइट. दिस इज सेंटेंस नंबर 13. नाउ सेंटेंस नंबर 14. They have to organize a seminar tomorrow. Let me play the timer. Time is over. Now, if you look at this example, they have to organize a meeting or a seminar tomorrow. If you just look at this particular an adverb, देखो ये जो एडवर्ब दिया गया है, दिस बिलोंग्स टू फ्यूचर, ये आपका फ्यूचर का एडवर्ब दिया गया है. एंड इफ यू जस्ट लुक एट दिस पर्टिकुलर मॉडल वर्ब हैव टू, ये आपका प्रेजेंट कंपल्शन को बताता है. व्हेन यू हैव टू प्रेजेंट योर फ्यूचर कंपल्शन, जब आपको आपका फ्यूचर कंपल्शन एक्सप्रेस करना होता है, सो इंस्टेड ऑफ राइटिंग हैव टू, वहां पे हमें विल हैव टू यूज करना होगा. क्या यूज करना होगा? विल हैव टू. सो द करेक्ट आंसर इज दे विल हैव टू ऑर्गेनाइज अ सेमिनार tomorrow. यानी उनको कल एक सेमिनार ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा कल. राइट. नाउ द लास्ट सेंटेंस इज इफ यू डू नॉट कंप्लीट योर होमवर्क, अगर तुम अपना होमवर्क कंप्लीट नहीं करते हैं, यू विल बी पनिश्ड, तो तुम्हें पनिश किया जाएगा. The time starts now.
Time is over. Now look at this example, my dear student. I taught you earlier as well. Now देखिए ध्यान से, जनरली क्या होता है, आई और वी के साथ हम क्या यूज करते हैं, शेल यूज कर लेते हैं, और बाकी जो भी रेस्ट ऑफ द सब्जेक्ट्स उनके साथ विल यूज कर लेते हैं. बट whenever we express our statement with stress or emphasize, जब हम अपने स्टेटमेंट को emphasize करके बोलते हैं, स्ट्रेस करके बोलते हैं, तो जिनके साथ शेल लगता है उनके साथ हम विल लगाएंगे, जिनके साथ हम विल लगाते हैं उनके साथ हम शेल लगाएंगे. बट इफ यू लुक एट द सेंटेंस, इफ यू डू नॉट कंप्लीट योर होमवर्क, यानी आप कह रहे हो कि अगर आपने अपना होमवर्क कंप्लीट नहीं किया ना तो तुम्हें पनिश किया जाएगा. तो इट मींस कहीं ना कहीं आप सामने वाले को थ्रेटन कर रहे हो, तो इसलिए क्योंकि स्ट्रेस करोगे, आप थ्रेटन कर रहे हो, तो आपका जो स्टेटमेंट है वो क्या है, एम्फसाइज करके बोल रहे हो कहीं ना कहीं आप. सो इंस्टेड ऑफ राइटिंग विल, हमें यहाँ पे शैल यूज करना पड़ेगा, क्योंकि आप अपनी स्टेटमेंट को थोड़ा स्ट्रांगली बोल रहे हो. सो इफ यू डू नॉट कंप्लीट योर होमवर्क, यू शैल बी पनिश्ड इज द करेक्ट आंसर. So my dear student, this is all about from my side. Thanks for watching this video. Please do like, share, comment, and subscribe to my channel. So tomorrow I'll come with another topic. Till then, bye-bye, take care, and have a nice day.